Nearly 2 months after the alleged gang rape of a student belonging to the BHU campus in Varanasi, Uttar Pradesh cops have arrested 3 accused. But the arrest of Kunal Pandey, Abhishek Chauhan and Saksham Patel has sparked a political showdown. The opposition alleges that the 2 arrested, that is Kunal Pandey and Saksham Patel, belong to the BJP's IT cell in Varanasi. The Grand Old Party is flaunting pictures of the 2 accused with BJP netas, alleging that the patronage resulted in the delay in arrest. Now, training guns at the BJP, the Congress said that the Saffron Party not only harbors rapists but also gives them plum posts. Akhilesh Yadav too launched an unsparing attack. He said that women are unsafe under the BJP government in Uttar Pradesh. Listen in to the war of words. देखिए, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उन्हीं को पहले बुला करके पूछताछ करके छोड़ दिया गया था। ये इसलिए कि ये संस्था की पुलिस को पहले ही पता चल गए थे कि कौन आरोपी है, लेकिन जानबूझ करके इतना बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें थी, या हो सकता है सत्ताधारी दल का दबाव रहा होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अब जब सच सामने आ गया है तो इनके पीछे इनके मददगार कौन थे, उनका भी नाम सामने आना चाहिए और इनके खिलाफ जितना कठोरतम कार्रवाई हो। Well, now the Congress has splashed pictures of the accused with BJP leaders, viewers, like we told you earlier, and now the BJP has also responded back about the same allegations. The Congress, on the other hand, has launched an unsparing attack, saying that the BJP workers who are part of the IT cell are given plum posts instead of being acted against. But the complainant in the FIR has now alleged that a bike with 3 people came and stopped the victim after she left the hostel for a walk on the night of November 2nd at about 1:30 a.m. She asserts that the 3 people gagged her mouth and took her to a corner where they kissed her and also allegedly disrobed her. She goes on to say that they even made a video of her. The complainant asserted that the accused threatened to kill her after she started screaming, and she was also held hostage for about 10 to 15 minutes and later allowed to go. She said that the accused followed her to the hostel, and the Yogi government, on the other hand, viewers, has assured that the guilty will not be spared. Listen in. जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, लेकिन कहा जा रहा है कि जो तीनों आरोपी हैं वो बीजेपी कहीं के हो, कहीं अगर कहीं के जुटे हुए हों, अगर कोई आदमी अपराधी है और आके भाजपा में चला गया है, कार्रवाई होगी। Now, the Congress is asking why it took about 2 months for the cops to arrest the sexual predators. It says that the BJP should rename itself as Balatkari Janata Party. ये कौन? मालविया जी, आप कुछ बोल सकते हो अभी? ये है घनिष्ठता आपकी 2 अलग अलग जगह समय पे। ये देखिए कुणाल, ये देखिए सक्षम पटेल। महिलाओं पे अत्याचार रोकने की तो दूर की बात है, खुद महिलाओं पे अत्याचार में शामिल होते और अत्याचार क्या, रेपिस्ट है। 60 दिन की छुट्टी में ये 60 दिन जो लगे, कौन कौन से जो उनके जो प्रूफ से उसे मिटाया गया होगा। प्रधानमंत्री जी, सक्षम पटेल के साथ भी। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हो? मैं पूछना चाहती हूं, वो बचाने वाले आखिर हैं कौन? वो हैं कौन जिन्होंने 60 दिन FIR होने के बाद भी लगातार इन अपराधियों को बचाया? कि ऐसे भाजपा में IT सेल में ऐसे लोग पनप रहे हैं, ऐसे लोग फल और फूल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की बात है, और अगर हर जगह का जनप्रतिनिधि जवाबदेही है तो प्रधानमंत्री भी जवाबदेही है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। बताइए, किसके कहने से इन लोगों ने वो मोटरसाइकिल पर 3 लोग रेप करने के बाद मध्य प्रदेश कैसे पहुंचे? 1 नवंबर की FIR के बाद अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? Well, that's the question the Congress is asking. Who shielded these accused from being booked? And the locals also near their house of the accused want the Yogi government to unleash bulldozer action. Listen in. BHU में IIT छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें से अभिषेक चौहान भी हैं। अभिषेक चौहान
वाराणसी के बजरडीहा के जीवनाथपुर इलाके में रहते हैं और फिलहाल टाइम्स नाउ की जो टीम है वो इस वक्त उनके घर पर मौजूद है। देखिए ये एक छोटा सा ये मकान है और इस मकान के जो दीवार है वहां पर साफ तौर पे एक पोस्टर भी है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष अभिषेक चौहान, यानी भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अभिषेक चौहान से पल्ला झाड़ रही थी, इस बात से इस फोटो से ये साफ तौर पे तस्दीक होता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। फिलहाल इस घटना में जिस तरीके से उनका नाम सामने आया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद से जो पूरा मोहल्ला है वो बेहद सख्ते में है और इस वक्त देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके मोहल्ले का जो एक लड़का था जो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय करता था। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते थे कि लड़कियों को अगर कोई उनके साथ छेड़खानी करता तो यमराज अगले चौराहे पे इंतजार करते, तो ऐसे में इन जो आरोपी हैं जो कि अभिषेक चौहान है इनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए और इसी को लेकर क्या लगता है जी, क्या लगता है बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ, बुलडोजर हमेशा बुलडोजर रहेगा, बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए, हमेशा बुलडोजर चलाया तो बुलडोजर चलेगा। Well, that's the public opinion, and whether the government would act or not remains to be seen. But the arrest, viewers, comes days after a court sentenced UP MLA Ramdullah Gond to 25 years in prison for raping a minor in 2014. And additionally, Gond has been disqualified as a member of the Uttar Pradesh Assembly, and the convict was also fined 10 lakh rupees, which will be used to rehabilitate the victim. The Congress, however, unsparing, says that by not expelling Ramdullah Gond, the BJP is emboldening such rapists. Well, we have